عمرے والے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں مذکورات کے اعتبار سے، یا ہمارے جو مرد حضرات ہیں، تو ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو عمرہ میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ دو. کتنے ہوتے ہیں؟ دو فرائض ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے احرام اور دوسرا طواف. ایک احرام میں کیا آئے گا؟ اس میں دو چادریں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، مستورات بھی، یہ مستورات کے لیے نہیں، مرد حضرات کے لیے. ٹھیک ہے، یہ دو چادریں آ جائیں گی. تو اس کا پریکٹیکلی بھی بتایا جائے گا کہ کیسے یہ نیت کرنے کے ہم اس میں سامان، کیونکہ احرام میں صرف دو چادریں ہوتی ہیں. مسائل ہے، مسئلہ ہے. احرام میں صرف نہانا نہیں ہے، وہاں وضو وغیرہ کریں گے، جو نمازیں ہوں گی نمازیں ہم نے ادا کرنی ہے. تو اس کے بعد یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ جو ہے آپ کے بیگس وغیرہ وہ دیے. نماز شروع ہونے کا ٹائم ہو گیا تو نماز کہاں پڑھیں گے؟ سوالوں کا سنتے گئے، آگے چلتے گئے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا. تو وہاں سے چلے کدھر کی طرف؟ میدان عرفات سے واپسی مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ جو ہے ان کو طواف زیارت خانہ کعبہ کو کرنی ہے جا کے. تو اگر وہ پہلے دن نہ جا پایا تو ریسٹ کرے. حدیث پاک میں ہے سفر قطعۃ من النار، یہ جو سفر ہے یہ نار کا، آگ کا ایک حصہ ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے، کھانا ڈسٹرب، سونا ڈسٹرب. ہمارے جو عمرے والے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں مذکورات کے اعتبار سے، یا ہمارے جو مرد حضرات ہیں. تو ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو عمرہ میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ دو. کتنے ہوتے ہیں؟ دو فرائض ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے احرام اور دوسرا طواف. ایک احرام، یہ احرام میں کیا آئے گا؟ اس میں دو چادریں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، مستورات بھی، یہ مستورات کے لیے نہیں، مرد حضرات کے لیے. ٹھیک ہے، یہ دو چادریں آ جائیں گی. تو اس کا پریکٹیکلی بھی بتائیں گے کہ کیسے یہ ایک چادر نکالیں. اس کے بہت سے طریقے ہیں. اس کے جو احرام باندھنے کے بہت سے طریقے ہیں، 5-10 طریقے ہیں. آپ کو سارے طریقے سمجھائیں گے، لیکن سب سے آسان جو طریقہ ہوتا ہے جس میں فری رہتے ہیں، آپ دیکھ لیں یہاں پہ بینٹ بھی لگانا. جس کو کوئی شک شبہ ہو، ایک مسئلہ ہے مفتی صاحب سامنے، ہم جو بیلٹ لگا رہے ہیں ابھی، اس بیلٹ کی ہمیں صرف سامان کی نیت کرنی کہ ہم اس میں سامان، کیونکہ احرام میں صرف دو چادریں ہوتی ہیں. مسائل ہے، مسئلہ ہے. احرام میں صرف دو چادریں ہوتی ہیں. اگر یہ لگا رہے ہیں ہم تو اس میں کیا رہے گا؟ ہمارا پیسے وغیرہ جو بھی ہے، ضروریات، دوائی وغیرہ رہے گی. ٹھیک ہے، اب بیٹھنے اٹھنے میں دیکھیں یہ پریکٹیکلی ہو گیا. بیٹھنے مطلب اٹھنے میں آپ کو کوئی بھی دقت نہیں ہوگی، چلنے پھرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ احرام ہم نے دلی ایئرپورٹ، جب ہمارا گیٹ نمبر 21 ہوتا ہے سعودی ایئر لائن کا، تو وہاں 21 نمبر گیٹ پہ ہم نے یہ نہانا نہیں ہے، وہاں وضو وغیرہ کریں گے، جو نمازیں ہوں گی نمازیں ہم نے ادا کرنی ہے. تو اس کے بعد یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہے اس میں کوئی مطلب کتنا ٹائم لگا اس میں؟ اتنا مطلب وہ گھبرانے والی بات نہیں ہے. آج جملہ بہت آسان ہے، لیکن سب پتا چلے. یہ میں آپ کو سینڈ بھی کروں گا، ہر ایک کے موبائل پہ میں آپ کو سینڈ کروں گا. پھر ہم نیت کریں گے عمرہ کی. کیا کرنی نیت؟ وہ یاد بھی ہوگی کئی لوگوں کو، جن کو نہیں ہے یاد وہ یاد کر لیں، چاہے اردو میں کر لیں چاہے عربی میں کر لیں. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ ہے. یا ہم اردو میں بھی کر سکتے، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں. لیڈیز کیا بولے گی؟ کرتی ہوں. اگر جس کو نہیں ہے یاد، لیکن وہ تو یاد ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، تو یہ کم سے کم یاد کرنا چاہیے. محنت تو کرنی ہے، ہم جا رہے ہیں اس سفر پہ تو وہاں تو ضروری ہے یہ چیزیں. تو کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید. کے بعد کیا کرنا آپ نے؟ اب آپ نے جب کسی کو ٹوپی لگی ہوگی، جیسے جس میں کوئی ٹوپی لگاتا ہے، لیکن جب آپ نیت کریں گے تو پھر آپ نے ٹوپی نہیں لگانی ہے. یا یہ احرام کی چادر کے لوگ نماز کے دوران جو دلی ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے لگائی ہوتی ہے، ہوتا عادت ہوتا کسی کو، لیکن پھر آپ سر کے اوپر کوئی بھی کپڑا، چاہے نیند پڑے، کیونکہ اس میں فلائٹ میں جو ہے نیند بھی آتی ہے، وہاں سپرے کرتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں آدھی. لیکن خیال رکھنا کہ ہم سر کے اوپر کیا
कोई भी कपड़ा ना रखें, ठीक है इंशाल्लाह। अभी तक बात समझ आ गई सबको? जो इसमें सवाल पूछने होंगे बाद में पूछना, उसका जवाब अच्छे अंदाज में दिया जाएगा और आसान अल्फाज में दिया जाएगा, ठीक है। जब हमने नियत कर ली, जब हमने नियत, फिर हमें क्या, हमें 3 बार तलबिया पढ़ना है। क्या करना है? 3 मरतबा हमने क्या करना है? तलबिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा, पढ़ो सब, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये कितनी बार? ये पढ़ना जरूरी है। ये बात क्यों पढ़ना जरूरी, मुफ्ती साहब बताएंगे बाद में। अगर सवाल करोगे तो मुफ्ती साहब बताएंगे आप, क्योंकि हम मसाइल के तो मुफ्ती इसके एक्सपर्ट होते हैं। क्या करना, क्या पढ़ना हमने? तलबिया पढ़ना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ठीक है, कितनी मरतबा? कम से कम 3। और तो ये जारी करना है। जब उम्रा की नियत कर ली, फिर क्या किया? 3 बार तलबिया पढ़ लिया, फिर आपने कोई भी वैसा काम नहीं करना। आप पे पाबंदियां आयद हो चुकी है। ये हम बंद नहीं करेंगे, तलबिया हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन नजरें हमारी, अभी हमने कहाँ जाना है? हमने खाने काबा को देखना है, लेकिन नजरें हमारी कहाँ होंगी? नीचे होंगी। नजरें हमारी ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो हम आस्ता आस्ता आगे, कैफियत होगी, आपकी अपनी कैफियत होगी। जो जैसा तैयारी करके जाता है एग्जाम में, तो उसकी हालत वहाँ पे वैसी होती है। कुछ लोग तो वहाँ पे फेंट भी हो जाते हैं। तो यकीन ही नहीं आता, भाई मैं तो इस काबिल ही नहीं था, मैं तो इस काबिल, मेरे तो अमाल ही ऐसे नहीं है। मैं खाने काबा को तो जब मैं पहली बार गया था, आप प्रैक्टिकली देखो, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड से आप वहाँ नहीं देख सकते खाना काबा का। इतनी तजल्लियात होती हैं। कोई मामूली घर नहीं है, बहुत बड़ा घर है, अल्लाह का बहुत बड़ा घर है। जिस घर की हम ज़ियारत करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा घर है। तो हमने क्या जाना, हमने वहाँ पे तैयारी करके जाना है। हम जो ऐसे हो गए, तो हमारी एंट्री यहाँ से होगी। हमारी एंट्री कहाँ से होगी? यहाँ से होगी, ऐसे होगी हमारी एंट्री। हम आस्ता आस्ता निकलेंगे। या अगर इधर से रश होगा, हम इधर से निकलेंगे, क्योंकि हमारा तवाफ कैसे जाएगा? एंटी क्लॉक जाएगा, क्लॉकवाइज नहीं जाएगा। हमारा कैसे जाएगा? एंटी क्लॉक। तो हमने क्या, उसको दो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बस ऐसे पढ़ते 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 हम कहाँ पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे हजरे अस्वद। तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम यहाँ पे पहुंचेंगे। ये हजरे अस्वद है, खाने काबा के दरवाजा के साथ जो है, ये क्या है? हजरे अस्वद है। हमें क्या करना है? यहाँ पे हमने 6 काम करने हैं। हजरे अस्वद, ठीक है, देख लिया। ये इस्तबा है, इसको क्या बोलते हैं? इस्तबा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, क्योंकि इस्तबा जरूरी है, सुन्नत तरीका है। ठीक है, फिर एक कदम आगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके ये जो हजरे अस्वद देख रहे हैं आप, हजरे अस्वद और सामने लाइट होती है। कहां पे? सफा पे लाइट होती है, याद रखना, ग्रीन लाइट होती है। हजरे अस्वद और ग्रीन लाइट के बिल्कुल सामने आप जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है? इस्तलाम करना है। क्या करना है? इस्तलाम करना। इस्तलाम आएगा, इस्तकबाल यहां तक आ गया, इस्तलाम कहां आ गया? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? फिर तीसरा काम क्या करेंगे? तो अकड़ के चलना। आप उसमें बताया कि इसमें अकड़ के चलना, पहले 3 चक्रों में। औरतें आस्था चलेंगी, लेकिन हमने क्या करना? ये मुंडे ऐसे, चलो। ये पहला चक्कर है। इसमें क्या करना है? इसको क्या बोलते हैं? रमल बोलते हैं। ठीक है, फिर जब पहुंचे आप कहां पे? हजरे अस्वद के, फिर आपने सीना नहीं वहां करना है। फिर क्या करना है? खाली हाथ करने हैं, मुड़े बगैर सीना करना है। लेकिन क्या करना है? हाथ इस्तेमाल करके। फिर आपका कौन सा आ गया? ये तस्बीह आपके सामने होगी, याद रखना। ये तस्बीह पहले चक्कर की तस्बीह होगी एक, फिर दूसरा तवाफ, ये दूसरा तवाफ चल रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ, चलो तीसरा, ये तीसरा चक्कर आ गया। ठीक है, अब 3 चक्रों में रमल हो गया। फिर चौथा चक्कर जो है, अब क्या करना है? अब आप नॉर्मल में चलेंगे। ये इस्तेबा आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल, जैसे इन्होंने रखा। ठीक है, फिर क्या करना हमने? जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, रुकने यमानी पे पहुंचेंगे, हर चक्कर पे, पहले चक्कर से लेके, तो सफा पे, यहाँ पे तो जगह कम है, लेकिन सफा बहुत बड़ा है। सफा के कितनी मंजिलें हैं? इसमें 4 मंजिलें हैं, गालबन 4 मंजिलें हैं। और से 4 मंजिलें। तो हम क्या जाएंगे? हम दूसरी मंजिल में जाएंगे इंशाल्लाह। कितने में?
हमारा जो होगा सिस्टम हमारा दूसरी मंजिल में, क्योंकि हम उम्रा करके सीधा हम मताफ से कहाँ निकलेंगे, हम सफा की तरफ। तो सफा पे हमने दुआ की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, 3 बार हमने पढ़ा, उसके बाद दुआ मुख्तसर की, फिर हम चले कहाँ, किस तरफ, उधर से पीछे से चलो, पीछे से चलो, ठीक है, वहाँ पिलर है, पीछे से चलो, ठीक है ना। पिलर के बाद चलते फिर हम तीसरा चौथा कलमा जो भी है आस्ता आस्ता चलेंगे, लेकिन बीच में आएगी एक ग्रीन लाइट आएगी, क्या बोलते हैं सब उसको, अकबर मीने, वहां पे दौड़ी है हजरत हाजर अलैहिस्सलाम दौड़ी है, तो वहां पे हम भी इंशाल्लाह दौड़ेंगे, हम वही चलेंगे इंशाल्लाह, वो भी कबूल हो जाएगा। तो वहां पे हम आधे, एक जगह आएगी कहाँ पे, सफा से जाते ही वहां क्या ग्रीन लाइट, औरतें ना दौड़े, मर्द सफा की तरफ, ठीक है, वहां जहाँ दौड़ना है वहां पे दौड़ेंगे, लेकिन मस्तूरात नहीं दौड़ेंगी, जो मर्द हजरात है वही दौड़ेंगे, ठीक है, इकट्ठे चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, बात समझ आ रही है। देखिए अजहर भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर साल ग्रुप होते हैं इस पीक सीज़न में, दिसंबर जनवरी फरवरी या रमज़ान में हर साल हमारे ग्रुप होते हैं। तो मुझे भी अल्लाह ताला हर साल मौका देता है कि जनवरी में हमारे मुकामी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो इस साल मुझे भी मौका मिला है, जनवरी के दूसरे हफ्ते में हमारा यहाँ से हमारी रवानगी है इंशाल्लाह। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, अभी तरबियत भी चल रही है, आपने देख लिया। तो हमारी सर्विसेज तो उसका तो आपने पिछले साल खुद मुशाहिदा किया, आप भी तो हमारे साथ। तो सर्विस के एतबार से हम तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं, कोशिश करते हैं, वादा नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वहाँ पे खाने के एतबार से हो, इबादत के एतबार से हो, होटल के एतबार से हो। अभी हमारे हाजी साहब जो हज पे आए रिसेंटली, शफ़ी साहब जो हैं ये हज पे आए, इन्होंने हज का भी देख लिया हमारा सिस्टम। अभी हमारा 2025 में जो हाजी लोग जा रहे हैं 17 लोग हैं इसमें, तो उसमें अल्लाह का फजल है, भद्रवा के भी उसमें 6 लोग हैं, जो 40 का ग्रुप है, 17 हमारे हैं, कुछ बाहर के भी हैं, लेकिन मुकामी जो है 6 लोग हैं वो हज पे जा रहे हैं। तो इसमें हमारे अफोर्डेबल पैकेज भी है, जिसको बजट पैकेज भी कहा जाता है, इकॉनमी भी है, डिलक्स भी है। इसमें 18 डेज़ की भी पैकेज है, 40 दिन की भी है, 38 दिन की पैकेज भी है। तो हम हर साल इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अल्लाह का फजल है। होटल भी हमारे अच्छे हैं। 3 सर्विसेज हम उम्रा में दे रहे हैं, 3 किस्म की इसमें आती हैं। एक सुपर सेवर आती है, उसमें रॉयल आएगा, सुपर सेवर आएगा, या फिर उसमें क्लासिक आएगा। फिर एक रेगुलर आती है, रेगुलर में भी 3 आएंगे, उसमें गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, या फिर उसमें ब्रॉन्ज आएगा। ये पैकेजेस होती हैं। फिर एक वीआईपी पैकेज होता है, लेकिन बहुत कम होते हैं, ज़्यादा तो रेगुलर पैकेजेस में ही हमारा यहाँ काम होता है। तो सर्विस अल्लाह का फजल है, कोशिश करते हैं हम कि सर्विस अच्छी से अच्छी हो, चाहे फ़्लाइट के एतबार से हो, रूम के एतबार से हो, ज़ियारत के एतबार से हो, इबादत के एतबार से हो। तो वहाँ पे जो काम होते हैं वो हम अच्छी तरह से हर साल, हमारे खुद भी मैं होता हूँ, या अगर मेरी गैर हाज़िरी में वहाँ पे हमारे गाइड होते हैं, मुअल्लिम होते हैं, मैनेजर होते हैं, हमारे जद्दा में होते हैं वो, उसके बाद मक्का में अलग से, मदीना में अलग से, उम्रा के लिए अलग से होता है। तो हम कहते हैं लोगों के कि आप देख लो, क्योंकि अभी हमारे 2 दिन पहले एक ग्रुप आया, 40 लोगों का 16 दिन का ग्रुप था। उसमें भी एक हाजी जो है उसकी फैमिली थी, वो भद्रवा के थे। उन्होंने तो आपसे शायद बात भी की, उन्होंने खुद बताया कि सस्ती पैकेज भी है, 60-65 हज़ार से स्टार्ट होती है हमारी पैकेज। तो इसमें ये 90 हज़ार तक जाती है, ये सेवर की बात कर रहा हूँ मैं, 90 हज़ार या लाख तक जाती है। या फिर अगर उससे ऊपर जाना हो तो वो फिर 1,12,000, 1,20, 1,25, करीब 1,80,000 तक जाती है पैकेज। तो जो जिस एतबार से आना चाहे वो जाना चाहे वहाँ पे, तो हम अल्लाह ताला के फजल और करम से पूरी कोशिश करते हैं कि हाजी को अच्छी से अच्छी सर्विस मिले। तो पिछले साल हमारी उसमें एक चीज़ हमने इस साल ऐड की है, क्योंकि कोई हमें सिंगल रूम की डिमांड करता था, या डबल की करता था, या ट्रिपल की, या क्वाड होता था, क्विंट होता था। तो लेकिन अल्लाह का फजल है, इस साल भी वो चीज़ हमें ख़त्म हो गई। वो हम कोई सिंगल रूम लेना चाहे, डबल रूम लेना चाहे, 3 का, 4 का, 5 का, या शेयरिंग में रहना चाहे, तो हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे हज के एतबार से हो, चाहे उम्रा के एतबार से हो, चाहे उसमें हज जो, हाँ एक चीज़ और है, हज ये जो उम्रा है उसमें उम्रा 3 दिन का भी होगा, 5 दिन का होगा, 8 दिन का होगा, 10 दिन का होगा, 14 दिन होगा, 16 दिन का है, 21 दिन का है, 25 दिन का है, 30 दिन का है। और रमज़ान में अभी 33 दिन का हमारी बुकिंग शुरू हो चुकी है। उसमें कोई 12-13 पासपोर्ट जो है आ चुके हैं। तो जो भी लोग जाना चाहें वो देख लें कि
सर्विस 4-5 लोग थे, आपके साथ और लोग भी थे, चाहे आपने होटल का देख लिया, खाने का देख लिया, या इबादत में किसी चीज़ की कमी रही, क्योंकि मेन चीज़ तो मैं फोकस करता हूँ इबादत की लाइन से। तो इबादत वहाँ जो जिस मकसद के लिए जाते हैं लोग, वो मकसद पूरा होना चाहिए। देखिए, ये पहले चीज़ होती थी कि फिक्स होता था, पहले होता था जब काम 2018 में मैंने शुरू किया था ये, तो पहले होता था किसी के साथ हम काम करते थे, लेकिन इस वक्त अल्लाह का फजल है, 0 मीटर से लेके 2.5 किलोमीटर तक, उसमें 55,000 की भी पैकेज आएगी, उसमें वाया फ्लाइट भी आएगी हमारी। तो मैं तो कोशिश करता हूँ मेरे साथ जो लोग जाते हैं वो डायरेक्ट फ्लाइट में ही जाते हैं, लेकिन वाया फ्लाइट भी है, 55,000 से हमारी पैकेज शुरू होती है, उसमें वाया फ्लाइट आएगी, होटल थोड़ा दूर होगा, सर्विसेज, खाने के एतबार से हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हाजी खाएगा तो इबादत करेगा। अगर वहाँ पे खाना जो है अच्छा नहीं मिलेगा, वो तो इन्होंने खुद देख लिया खाना किस किस्म का होता है, या जो अभी उम्रे पे आ गए। बेसिकली मैं ठाठरी का रहने वाला हूँ और मैं कुछ वक्त से यानी अब 20 साल से यहाँ भदरवा में रह रहा हूँ, और मेरा नाम भी अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और हज उम्रा के लिए, और मैं भी यहाँ से बजरिया टूर वालों की तरफ से यहाँ से हज और उम्रा के लिए गया, और बेहतरीन अच्छी फैसिलिटी के साथ यहाँ से निकला भी, और रास्ते में भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हज मौका तक पहुँचने तक, और वहाँ की इबादत भी बहुत अच्छी हुई हमारी। और मेरी अहलिया भी साथ में थी, बल्कि वो उनको प्रॉब्लम थी, घुटनों में तकलीफ़ थी, वहाँ व्हील चेयर मिली, व्हील चेयर के थ्रू हमने वहाँ आगे जो सफ़र था, हज का सफ़र था, मैदान अरफात हुआ, मुज़दलिफ़ा हुआ, मिना हुआ, वो सारा तय किया, जमरात में कंकरियाँ मारने जाना था वो तय किया, और खाने काबा के तवाफ़ और सही वगैरह करके हर इबादत, हर इरकान पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर हम वापस यहाँ तक आए। और टूर वालों की तरफ से हमको अच्छी फैसिलिटीज़ मिली, खाना पीना, होटल हमको इतना करीब मका में मिला था कि हम सिर्फ 5-10 मिनट में अज़ान होती थी, हम निकलते थे, और अज़ान के ख़त्म पर हम वहाँ पहुँचते थे, क्योंकि अवल टाइम होता था, तो हम लोग नमाज भी पढ़ लेते थे, और तहज्जुद की नमाज की अज़ान भी 2 बजे रात को लगती है, वो भी हमें मिलती थी, और हम वहाँ तहज्जुद वगैरह पढ़ के सुबह की नमाज भी वहीं से पढ़ के आराम से होटल में ब्रेकफास्ट करके, फिर चाहे उम्रा के लिए जाना होता था या कहाँ से, तमाम वो ज़ियारत वगैरह करके, तो वहाँ से जैसे इन्होंने टूर वालों ने ज़ियारत कराए, हम अपना एहराम साथ ले जाते थे, उधर से मिकात से अपना एहराम बांध के अपना उम्रा की मतलब उम्रा के लिए फिर से आते थे। यानी तो ये भी जा रहे हैं, और अच्छा हमें इंतज़ाम अच्छा मिल रहा है इनकी तरफ से, वहाँ पे कोई किस्म की तंगी नहीं, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं मिल रही है वहाँ पे। जी।